Let's start with question number 1 of exercise 12.3. This is from NCERT Exampler. So let's start with it. So it says 3 metallic solid cubes whose edges are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted and formed into a single cube. Find the edges of the cube so formed. तो हमारे पास 3 solid cubes हैं which is of 3 different edges. So the first one is of 3 centimeter, next one is of 4 centimeter. Now they are melting these 3 cubes. The last one is of 5 centimeter. They are melting these cubes to form a new cube, and they are asking us to find the value of edge of a new cube formed. So therefore they are talking in terms of volume, because we know that volume never change. अगर आप रीकास्टिंग प्रोसेस कर रहे हो तो वॉल्यूम आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 3rd क्यूब इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब. तो हम मान लेते हैं दैट द न्यू क्यूब हैज़ एज एज a. So this is a here. Now v1 is 3 cube, a cube, v2 cube, v2 is 4 cube, then v3 is 5 cube, then the last one will be a cube. Now you have to take cube of all the numbers. So 3 cube is 27, 4 cube is 64, just a second, this is 64. Then after this we have 5 cube as 125. So now let's add these 3 terms. So we have 27, 64 and then we have 125. So this will give us 216 and it equals a cube. Now you need to find the cube root of 216, and cube root of 216 is 6 only. So we get the value of a cube as 6 cube. Now you can cancel cube with cube. So the final answer will be a as 6 centimeter. So the edge of a new cube is 6 centimeter. So this is how you can find the answer for these types of questions. Question number 2 says, how many shots each having diameter 3 centimeter can be made from a cubical lead solid of dimension 9 centimeter, 11 centimeter and 12 centimeter. So we are given with 2 shapes. One is cuboidal and the other is sphere. They are spherical shots. So यहाँ पे हमें cuboid के केस में length is given as 9 centimeter, breadth is 11 centimeter and the height is 12 centimeter. Now if I consider sphere, sphere has radius 3/2, क्योंकि diameter given है तो उसका half कर देंगे. So it is 3/2 centimeter, or you can write it as 1.5 centimeter. Now it says how many shots. How many shots means how many spherical shots we can have from one cubical box. Sorry, one cuboidal box. So we have cuboidal box जिसकी length दी हुई है, breadth दी हुई है, height दी हुई है. So now we know how to form the equation here is we have to find n number of sphere. So I will write n times volume of sphere. So it is n into volume of sphere. n मतलब कि कितने स्फेयर बन सकते हैं एक क्यूबॉइडल बॉक्स में से जब उसको वो रिकास्ट करेंगे और मेल्ट करेंगे, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. So it is n times volume of sphere. Volume of sphere is 4/3 pi r cube. Then we have volume of cuboid as L into B into H. So we have n unknown. We have 4/3 as it is. Pi can be written as 22/7. R cube. R cube is 1.5 raised to power 3. Then we have times, no, it equals L into B into H, that is 9 into 11 into
12. तो अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n वेरी इजीली. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 9 into 11 into 12 into 7 into 3. Then at bottom we have 4 into 22 into 1.5 3 times. So we have 11 over 22, 11 by 1, 22 by 2. Then we can reduce 4 with 12, so it is 3. Then we can't cross any other thing here. So when you divide this completely, when you multiply and divide the terms completely, your answer would be 84. So आपको 84 शॉर्ट्स मिल सकती हैं एक क्यूबॉइडल बॉक्स में से. एक क्यूबॉइडल बॉक्स में से आपको कितनी स्फेयर मिल सकते हैं, स्फेरिकल शॉर्ट्स मिल सकती हैं. यू कैन हैव 84 शॉर्ट्स ऑफ स्फेयर out of one cuboidal box. So this is how you can find the answer for this. This is very important question for CBSE board. Now let's move on to question number 3. Question number 3 says a bucket is in the shape of a frustum of a cone and holds 28.490 liters of water. The radii of the top and bottom are 28 centimeter and 21 centimeter respectively. Find the height of the bucket. So we have a bucket and the shape of a bucket is a frustum, right? और यहाँ पे हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, इट इज़ 28 सेंटीमीटर. देन इट इज़ गिवन कि जो बॉटम पार्ट का रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बकेट. h निकालना है हमें. r1 दिया हुआ है 28, r2 की वैल्यू दी हुई है 21 and volume is given as well. Volume given to U is 28.490 क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये कैपेसिटी होल्ड कर सकता है. इसका मतलब वी हैव टू नाउ कन्वर्ट लीटर इनटू सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास R1 भी सेंटीमीटर में है, R2 भी सेंटीमीटर में है, तो वी विल कन्वर्ट लीटर इनटू सेंटीमीटर. नाउ यू मस्ट नो कि लीटर को अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इट इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो you have to multiply 28.490 with 1000. So your final will be 28,490 centimeter cube. Now we know the volume of frustum is 1 by 3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 dot r2. Volume given to you is 28,490. Then you have 1 by 3, pi as 22 over 7, h is not given to you, then you have to take r1 square, 28 का स्क्वायर कर दो, 21 का स्क्वायर कर दो, then लास्ट में 28 into 21 हो जाएगा. So now let's simplify this and find the value of h. तो अब आपने क्या करना है, 3 और 7 को ऊपर लेकर जाना है, 21 हो जाएगा. This will be 28,490 इंटू 21 और ये जो 22 है वो नीचे की तरफ आ जाएगा. देन यू हैव h और ब्रैकेट में आपने सारा सॉल्व करना है और उनको ऐड करना है. तो सबसे पहले आपके पास है 21 का स्क्वायर. सो 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर लोगे, देन 21 का स्क्वायर लोगे, देन 28 इंटू 21 करोगे. सो 28 स्क्वायर इज़ 784. Then you have 21 square. 21 square is 441. Now you have to multiply 21 with 28. So it will be 588. So now you have to add all these terms to find the bracket part. So it is 784 plus 441. Then we have 21 into 28, which is 588. So the final is 1813. Now you can take this number to left hand side और left hand side पे जाके वो divide हो जाएगा. So the next step will be 28,490 into 21 over 22 into 1813 is equal to height. So now we have 21, we have 22, then we have 118,
सॉरी 1813। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द सॉल्यूशन एज 15 सेंटीमीटर। जो हाइट हो जाएगी बकेट की वो कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट the height of the bucket if volume is given to you. Now let's start with question number 4. Let's now start with question number 4. So it says cone of radius 8 cm and height 12 cm is divided into two parts by plane through midpoint of its axis parallel to its base. तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है कंडीशन वो ये है कि आपके पास एक कोन है 8 सेंटीमीटर का और उसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है कि आप क्या करो, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो दो पार्ट्स में। तो ये मैंने इसकी डिवीजन बना दी, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि दोनों का रेशियो निकालो, कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स। जैसे हमारा एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। जो फर्स्ट पार्ट है मेरा वो कोन है, जो सेकेंड पार्ट है मेरा वो फ्रस्टम है। तो दोनों का हमें क्या करना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो हमें यहाँ का आर नहीं पता, कोन का आर नहीं पता। कैसे निकाल सकते हैं, कोन का आर निकल ज़रूर सकता है। दिस इज़ माई R1 एंड दिस इज़ माई R2। R1 नहीं पता, R2 पता है। अब देखो आप पहले मैं ट्राइंगल्स मार्क कर देती हूँ। लेट दिस पॉइंट बी O, दिस बी D, देन F, देन E, देन आई एम टेकिंग द बॉटम वन एज C, देन B एंड A। सो यहाँ पे अब आप देखो कि जो हमारा ट्राइंगल है OEF और OBC, दे आर एक्चुअली सिमिलर कैसे हैं, दे आर सिमिलर बाय AA क्राइटेरियन। लेट मी टेल यू कि उन दोनों का क्राइटेरियन कैसे हो रहा है, सिमिलैरिटी कैसे प्रूव हो रही है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों में एक एंगल 90 डिग्री हो गया। अब आपने देखना है कि दोनों का कॉमन एंगल कौन सा है। तो कॉमन एंगल इज दिस फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। चाहे आप बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, चाहे आप छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, दोनों में जो ये एंगल है OFE कॉमन ही है। तो दे आर सिमिलर बाय AA क्राइटेरियन। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि उनकी जो साइड्स की रेशियो होंगी वो भी इक्वल होंगी। सो R1 over R2 इज इक्वल टू H1 over H. H1 is nothing but this part and H is the total one. अब H1 को कैसे लिख सकते हो आप लोग, H1 क्या है, H2 का आधा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो आई विल राइट R1 over R2 is equal to H2 over H. So the leftover part is R1 over R2 is equal to 1 over 2. नाउ अब हमें R2 की वैल्यू तो पता है विच इज़ 8, और आप क्या करोगे, उसे राइट हैंड साइड लेकर जाओगे। सो इट विल बी 8 over 2 विच विल गिव यू 4 एज आंसर। मतलब R1 हमारा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर का। नाउ वी हैव टू टेक द वॉल्यूम ऑफ दीज टू पार्ट्स। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ले लूँगी, देन उसके नीचे हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे, रेशियो आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो फ्रस्टम होता क्या है, वॉल्यूम क्या होता है फ्रस्टम का, इट इज़ 1/3 πh R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 डॉट R2। देन वॉल्यूम ऑफ कोन वी नो इज़ 1/3 πr स्क्वायर h। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये दूसरी h है हमारा, मतलब फ्रस्टम की हाइट अलग है और हमारे कोन की हाइट अलग है। तो इसको हम मान लेते हैं H1। सो वी हैव H1 वी नो इज, H1 की वैल्यू है हमारी 6, क्योंकि टोटल हाइट दी हुई थी हमें 12, और 12 को अगर आप आधा कर दोगे तो इट विल बी 6। तो फ्रस्टम की हाइट कितनी हो गई थी हमारी, इट वॉज 6। जस्ट अ सेकेंड। सो वी हैव 6, देन वी हैव R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, इट विल बी 4 स्क्वायर। सो इट इज़ 4 स्क्वायर। देन वी हैव R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर इज 12, सॉरी R2 is 8,
so 8 square plus 4 into 8. Then at the bottom we have r square. r कौन सा है? कोन का r. r कोन का कितना है हमारा? इट इज़ 4 स्क्वायर इंटू h. h की वैल्यू, h की कौन सी वैल्यू आएगी? कोन की वैल्यू आएगी. कोन का h कितना है? इट इज़ 6. सो 6 से 6 तो कैंसिल हो गया हमारे पास. 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर मत कैंसिल करना, विच इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक. सो आपने सबको ऐड करना है. 4 स्क्वायर को, 8 स्क्वायर को, 8 इंटू 4 को, सबको ऐड करोगे और बॉटम में आपके पास बच जाएगा 16. और 16 को 112 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 7:1. सो आपकी रेशियो कितनी आ गई यहाँ पे? इट इज़ 7:1. सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ two parts if they are divided into two sections. Let's now start with question number 5. It says two identical cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined together end to end. What is the surface area of the resulting cuboid? तो उन्होंने हमें बोला है कि हमारे पास दो क्यूब्स हैं. क्यूब्स तो आपको पता ही है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो दो क्यूब्स का उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है. एक क्यूब का वॉल्यूम 64 है. सो 1 क्यूब वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ दे सेड कि जब आप इन दोनों क्यूब्स को आपस में मिलाओगे तो एक क्यूबॉइड फिगर बन जाएगी. एंड दैट्स राइट कि हमारा ये जो क्यूब हैं दो मिल के क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा. दैट्स राइट. अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें एक का वॉल्यूम दिया हुआ है, सो आई कैन ईजिली फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो हमारा क्या होता है? ए का क्यूब. और आप 64 को क्यूब की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 4 का क्यूब. या तो आप क्या कर सकते हो? क्यूब रूट ले सकते हो, या तो आप उसको क्यूब में कन्वर्ट कर दो. क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया. ए आपका 4 सेंटीमीटर आ गया. इसका मतलब एक क्यूब का जो एक एज है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर. नाउ अब हम देखेंगे कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में क्या चेंज आएगा. तो लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ हमारी ये होती है. एक का अगर 4 है साइड तो दो के क्या हो जाएगा? डबल का क्या हो जाएगा? 8. सो एल बी 8 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ तो वही रहेगी क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आया. ब्रेड्थ इज सेम, इट इज़ 4 फॉर ईच केस. और हाइट भी हमारी 4 ही रहेगी. तो जब क्यूब एक क्यूबॉइड में कन्वर्ट होता है, दो क्यूब को मिलाया जाता है, तब हमारी लेंथ चेंज होती है, ब्रेड्थ सेम रहती है, हाइट सेम रहती है. सो एच इज़ 4 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड surface area of the resulting cuboid, and surface area of the cuboid is given by twice of LB BH plus HL. सो अब हमारे पास L की वैल्यू है, B की वैल्यू है, H की वैल्यू है. वी विल पुट दोज वैल्यूज इन इक्वेशन, in this equation, which is 4 here, 4 again, then we have 4 times 8. So twice of 8 times 4 is 32. Then we have 16, then we again have 32. So the final will be twice of 32 plus 16 plus 32. So this will give you, finally it will give you twice of 80, and the total will be 160 centimeter square. So surface area कितना हो गया cuboid का? It is 160 centimeter square. So this is the answer for question number 5. Let's now move to question number 6. Let's start with question number 6. So it says, from a solid cube of side 7 centimeter, a conical cavity of height 7 centimeter and radius 3 centimeter is hollowed out. Find the volume of the remaining solid. So it says कि हमारे पास एक solid cube है, उसमें से हम conical cavity remove कर रहे हैं. Okay. So this is a cube of measurement 7 centimeter, side is 7 centimeter, and we are removing a conical cavity, और वी आर रिमूविंग अ कोन आउट ऑफ दिस. और कोन की हाइट भी 7 ही है और रेडियस गिवन टू अस इज 3 सेंटीमीटर. अब उन्होंने हमसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. वॉल्यूम बताओ जो बचा हुआ
सॉलिड है। सो सबसे बड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉलिड कौन सा है हमारे फिगर में, इट इज़ क्यूब, और क्यूब में से किसको रिमूव किया जा रहा है, दे आर रिमूविंग कोन, सो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। सो क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब, वॉल्यूम कोन का क्या होता है, इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ए क्यूब कितना हो गया हमारा, साइड क्यूब विच इज़ 7 क्यूब, और उसके बाद आपने लिखना है माइनस, इट विल बी माइनस 1/3 पाई इज 22/7, आर इज 3 स्क्वायर, देन वी हैव एच इज 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 क्यूब इज 343 एंड वी हैव 22 into 3 as 66. So your answer is 277. It will be 277 centimeter cube. So this is the answer for question number 6. Let's now move to question number 7. Let's now start with question number 7. It says two cones with same radius 8 centimeter and height 15 centimeter are joined together along their bases. तो हमारे पास दो कोन है और उनको बेसिस के साइड से जोड़ दिया गया, तो हमारे पास एक न्यू शेप फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है सरफेस एरिया फाइंड करो इस न्यू शेप का, तो आपने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कंसिडर नहीं करना, यू हैव टू कंसिडर सी एस से ऑफ कोन। आपने कोन का सी एस से कंसिडर करना है, क्योंकि आपके पास दो कोन है और उसका जो बेस एरिया है यहाँ पे वो मर्ज हो गए हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पे सी एस से लेना है, नॉट टी एस से। तो आपने दोनों ही सी एस से लेने हैं, दोनों ही कोन के सी एस से लेना है और उसका सम कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, एच इज़ 15 सेंटीमीटर फॉर वन कोन, दिस इज़ फॉर वन कोन। अब यहाँ पे आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर एल होगा, क्योंकि एक का पाई आर एल है तो दो के कितने हो जाएंगे, इट विल बी 2 पाई आर एल। अब यहाँ पे एल की वैल्यू नहीं दी हुई, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लांट हाइट, सो इट इज़ एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, 15 स्क्वायर इज 225, सो 64 और 225 को ऐड करोगे तो 289 आ जाएगा, and then you can write L square as 289 or L as 17, क्योंकि square root under root 289 is equal to 17, so L is 17 centimeter. Now we have to find the area of the shape, TSA of the shape. तो ध्यान रखना कि टोटल सरफेस एरिया मत ले लेना इसका कोन का, क्योंकि वो सबमर्ज हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं इस नई शेप की। सो इट विल बी 2 पाई आर एल, सो 2 into 22/7, r is 8 सेंटीमीटर एंड वी हैव l as 17, तो यहाँ पे आपके पास हो गया 2 into 22/7, 8 into 17. So when you solve this, you will get 854.857 centimeter square. So this is the answer for question number 7. So this is how you need to do this question. So let's now move to question number 8. Let's now start with question number 8. It says two solid cones A and B are placed in a cylindrical tube as shown in the figure. The ratio of their capacities are 2:1. Find the heights and capacities of cones. Also find the volume of the remaining portion of the cylinder. तो सबसे पहले आप देख सकते हो we have to find height निकालनी है, और फिर उसके बाद हमें निकालनी है कैपेसिटी दोनों ही कोन की, और उनकी रेशियो आपको क्या दी हुई है, इट इज़ गिवन एज 2:1, मतलब वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इज़ इक्वल टू 2/1। अब इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, r1 आई विल टेक फॉर द फर्स्ट कोन, दिस इज़ माई फर्स्ट कोन एंड दिस इज़ योर सेकेंड कोन। अब सेकेंड के लिए भी ऐसे ही हम फॉर्मूला लिखेंगे, इट विल बी r2 स्क्वायर h2, 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा,
आपके पास अब क्या गिवन था, 2:1 गिवन था, और आपके पास R गिवन है, R इन दिस केस इज 3। अब 3 कैसे आया, यहाँ पे इन्होंने डायमीटर दिया हुआ था हमें, इट वॉज 6, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 3। सो 2/1 3 स्क्वायर, नीचे भी 3 स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। H1 और H2 हमें नहीं पता यहाँ से, लेकिन हमारे पास H1 और H2 का एक रिलेशन आ जाएगा, एंड इट विल बी H1 इक्वल ट्वाइस ऑफ H2। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल हाइट कितनी दी हुई है हमें इस पूरे सिलेंडर की, इट इज़ H1 प्लस H2 एज 21। टोटल कितनी है, अगर हम H1 और H2 को ऐड कर दें तो हमारा टोटल कितना बन रहा है, 21। अब H1 को आप रिप्लेस कर सकते हो H2 से, सो आई विल राइट 2H2 और H2 एज इट इज। सो वी गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी 3H2 equal 21, and final it will be 21/3, and 21/3 can be written as 7 centimeter. That means height of second cone is 7. Now we can easily find the value of H1. So H1 will be twice of 7. So it is 14 centimeter. H1 is 14, H2 is 7 centimeter. Now we have to find the capacity of both cones. So we have to find volume of first cone. It is 1/3 pi r 1 square H1. So we have 1/3, then we have 22/7, then r1 square. r1 square is 3 square H1 is 14, 7 को 14 से कैंसिल कर दो, 3 को 3 से कैंसिल कर दो, so you get 22 into 3 into 2, so it will be 132 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरह आप वॉल्यूम ऑफ कोन 2 के लिए निकालोगे, सेकेंड कोन के लिए कैलकुलेशन करोगे, इट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर, r is 3 square, and h of second cone is 7, so it will be 7 here। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा क्या, 22 into 3 विच इज़ 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि रिमेनिंग पोर्शन का, ये जो खाली जगह है कोन के अलावा, उसका वॉल्यूम क्या है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे और उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन 1 और वॉल्यूम ऑफ कोन 2 माइनस कर दोगे, राइट। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है तो आप कोन को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1 एंड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 2। तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होता है इट इज़ पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1 तो अभी हमने निकाला ही था, इट वाज 132, और वॉल्यूम ऑफ कोन 2 वाज 66। तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, इट विल बी 22/7, आर ऑफ सिलेंडर इज 3 स्क्वायर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 21, राइट। सो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिड्यूस करेंगे, 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 9, 9 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 598, और 598 में से आप 594 में से आप 198 माइनस करोगे, माइनस करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9। Let's now start with question number 9. It says an ice cream cone full of ice cream having radius 5 centimeter and height 10 centimeter as shown in figure. Calculate the volume of ice cream provided that its 1/6 part is left unfilled with ice cream. तो उन्होंने हमें बताया है कि एक आइसक्रीम कोन है और वो फुल ऑफ आइसक्रीम है और उसका रेडियस और हाइट हमें दिया हुआ है
एज यू कैन सी इन द डायग्राम इटसेल्फ। और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना है, और उन्होंने ये बताया कि 1/6 पार्ट उसमें से खाली है, अनफिल्ड रह गया है विद द आइसक्रीम। तो हमें इसका मतलब निकालना है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, और उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन ये दी है कि 1/6 पार्ट बीच में से कहीं कहीं जगह से मिसिंग है। तो इसका मतलब कि 1 में से एक होल पार्ट में से 1/6 मिसिंग है, राइट। एंड देन यू हैव टू टेक द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन भी लेना है आपने, और आपने हेमिस्फेयर भी लेना है। दो डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द कोन, द बॉटम वन, द अपर वन इज हेमिस्फेयर। तो इन दोनों का सम लेना पड़ेगा आपको, और उसमें से हमने 1/6 माइनस कर दिए। अब 1 में से 1/6 अगर खाली है तो भरा हुआ कितना पार्ट है उसका, 5/6। अगर आप 1 को 1/6 से माइनस करोगे तो यू विल गेट 5/6। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब यहाँ पे हमें ध्यान से अपने वेरिएबल्स को फिल करना है। सो वी हैव 5/6, और अगर आप कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन भी ले लो। 1/3 एक तो कॉमन दिख रहा है मुझे, पाई कॉमन दिख रहा है, आर भी कॉमन है, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन है। सो वी आर लेफ्ट विथ एच एंड वी आर लेफ्ट विथ 2r. So we have 5/18. Pi can be written as 22/7. R square, r in this case is 5, so it will be 5 square. Then we have height, height as height of cone. See, h is for cone, तो यहाँ पे height cone की हमें देखनी है। तो यहाँ पे अगर ये हमारा 5 है, इफ़ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज़ 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब बची हुई हाइट कितनी हुई हमारी, इट विल बी 5। सॉरी, हाइट ऑफ कोन विल बी 5। देन वी हैव ट्वाइस ऑफ आर, आर इज़ 5 अगेन। सो वी हैव दिस वैल्यू नाउ, वी हैव 5/18, देन वी हैव 22, then we have 7, then we have 5 square as 25. Then when you solve this bracket, you will get 15. Why? Because 2 into 5 is 10, 10 plus 5 is 15. So you can reduce the values if you want to, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे सारे न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर को। तो 18 और 15 को कैंसिल कर लेते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 6, और भी अभी कैंसिल हो रहा है, 6 और 22 11 बन जाएगा, और ये नीचे वाला 3 बन जाएगा। सो अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर, सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल गिव यू 6875, और बॉटम में आपको 7 into 3 विच इज़ 21। तो डिवाइड करोगे, यू विल गेट 327.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितनी हो गई इस कोन में, it is about 327.4 centimeter cube. Now let's start with question number 10. Let's now start with question number 10. It says marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical beaker of diameter 7 centimeter. तो दो चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है। एक तो मार्बल्स, उन्होंने बोला डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर के हैं, इसका मतलब हमारे पास कुछ स्फेरिकल बॉल्स हैं या मार्बल्स हैं। उसको किस में ड्रॉप किया जा रहा है, कौन से टाइप ऑफ फिगर में मार्क किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, आई मीन इट इज़ सिलेंड्रिकल, और डायमीटर उसका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो एक तो स्फेयर की बात हो रही है और दूसरा हमारा सिलेंडर की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उनका रेडियस और उनकी हाइट जो भी है उसका मेजरमेंट वो अलग से नोट कर लेंगे। सो रेडियस कितना हो जाएगा मार्बल्स का, इट विल बी 1.4/2, और यू कैन राइट इट एज 0.7 सेंटीमीटर। अब सिलेंड्रिकल बीकर की बात हो रही है, डायमीटर दिया हुआ है आपको 7, रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, कंटेनिंग सम वाटर, मतलब उन्होंने बोला सिलेंडर में कुछ पानी है। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर सो दैट वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर, कि उसकी सिलेंडर की जो हाइट है या वाटर की जो हाइट है वो 5.6 सेंटीमीटर से बढ़ जाए। कितने मार्बल्स ऐसे डालें कि हमारी जो सिलेंडर की हाइट है
वो रेस करके 5.6 पे चले जाए। मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इसकी यहाँ पे, और हमें चाहिए 5.6। ठीक है, तो वॉल्यूम तो हमेशा हमारा सेम ही रहता है, हमें पता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मार्बल्स लोगे, और कितने डालने हैं वो हमें नहीं पता, मतलब उसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो इट विल बी n। जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ हमेशा हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस्ड इन सिलेंडर, सो इट विल बी n इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लेट दिस स्फेयर रेडियस बी बिग आर, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस सिलेंडर में कितना हो जाएगा, इट इज़ पाई r² h। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आपके पास n की वैल्यू तो है नहीं, 4/3 एज इट इज़ लिखोगे। r क्यूब, स्फेयर की वैल्यू कितनी है, 0.7 क्यूब, so 0.7 cube is equal to r square. R square represents cylinder radius, so it is 7/2 square, and height is 5.6। हमें reach कितना करना है, 5.6 तक। So now we will use cross multiplication to find the value of n, number of marbles. So it will be 7 into 7 into 5.6 into 3, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा हमारा, और नीचे हमारे पास 2 into 2 है, इट विल बी 4, और 4 एक और आ जाएगा, और 0.7 3 टाइम्स। सो वी हैव दिस वैल्यू नाउ। अब आपने क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करोगे, आपके पास पॉइंट से पॉइंट एक हट सकता है आपका, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एक और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा, और इसी तरह आप रिड्यूस कर सकते हो। अगेन यहाँ पे 2 ज़ीरोस लगा देते हैं और डेसिमल्स हटा ही देते हैं नीचे से। 7 को आप 56 से कैंसिल कर सकते हो, इट विल बी 8, और 4 को आप 8 से कैंसिल कर सकते हो, 2 को आप 4 से कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास नीचे बचा है 2, और ऊपर है आपके पास 3 और 100। तो 2 को 100 से कैंसिल कर देते हैं, इट विल बी 50, और हमारे पास फाइनली कितना बचा है, 50 इंटू 3, एंड 50 इंटू 3 इज नाउ 150। मतलब उसमें हमें 150 मार्बल्स ड्रॉप करने पड़ेंगे ताकि हमारा लेवल इंक्रीज हो जाए बाय 5.6 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Let's now start with question number 11. Let's now start with question number 11. It says how many spherical lead shots, each of diameter 4.2 centimeter, can be obtained from a solid rectangular lead piece with dimensions 66 centimeter, 42 centimeter and 21 centimeter. तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेड पीस है जो कि डायमेंशंस उन्होंने दी हुई हैं, एक क्यूबॉइड शेप है, और उसमें से वो पूछ रहे हैं कि हमें कितनी लेड शॉट्स मिल सकती हैं। तो हमें नंबर्स बताने हैं कि कितने लेड शॉट्स आप क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम अ क्यूबॉइड। आपको डायमेंशंस 66 सेंटीमीटर, एल इज़ 66, ब्रेथ इज़ 42 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 21 सेंटीमीटर इज़ गिवन टू यू। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्फेरिकल लेड शॉट्स की, तो डायमीटर उसका 4.2 है, रेडियस उसका 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है n नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉट्स। तो इसमें हमेशा हम जब भी रिकास्ट करते हैं तो हमारा वॉल्यूम इक्वल हो जाता है। सो n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट्स equals volume of lead cuboid. So this is now given to you and you have to apply the formula of cuboid and spherical shots. So we have n into volume of spherical shots कितना हो जाएगा, it will be 4/3 pi r cube. Volume of lead cuboid कितना हो जाएगा, L into B into H. Now R is given to us, R is 2.1 और L, B और H भी दिया हुआ है हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इट विल बी 4/3, पाई विल बी 22/7, R की वैल्यू 2.1 है, 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब दिया हुआ था, L हमें दिया हुआ है, B हमें दिया हुआ है, H हमें दिया हुआ है, सो इट इज़
66 इंटू 42 इंटू 21। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है और n की वैल्यू निकालनी है। सो इट विल बी 66 इंटू 42 इंटू 21 इंटू 7 इंटू 3। 7 और 3 हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये जो सारे नंबर्स हैं हमारे 4, 22 और 2.1 3 बार वो सारे के सारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब 22 से हम 66 कैंसिल कर देते हैं 11 के टेबल से। सो इट विल बी 6 हेयर, 2 हेयर। और 4 को आप कैंसिल कर सकते हो 42 से, दिस विल बी 21, दिस विल बी 2 हेयर। और आपका पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर देते हैं, 3 पॉइंट है तो ऊपर 1000 आ जाएगा। और 21 2 दिख रहे हैं हमें डायरेक्टली, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास नीचे 21 एक बार बचा और यू कैन सी कि 7 इंटू 3 है, तो 7 इंटू 3 से हम 21 रिमूव कर देंगे। और 2 है नीचे हमारे पास, दिस विल बी 3। और एक और 2 बचा है अभी हमारे पास, तो 1000 को आप 500 कर दो। सो 5 इंटू 3, 500 इंटू 3 इज़ 1500। मतलब आपके पास एक क्यूबॉइड में से 1500 स्फेरिकल शॉट्स निकल सकती हैं। That's the answer for question number 11. Now let's start with question number 12. Let's now start with question number 12. It says how many spherical lead shots of diameter 4 cm can be made out of a solid cube of lead whose edge measures 44 cm. तो हमारे पास एक क्यूब है और उसका जो साइड है वो 44 सेंटीमीटर का है और उन्होंने हमें बोला है कि आपने बताना है कि कितने लेड शॉट्स उसमें से निकल सकते हैं, कितने लेड शॉट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब n नंबर हमें नहीं पता कि कितने होंगे और वॉल्यूम हमारा दोनों का इक्वल रहेगा क्योंकि उसी में से हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, लेड शॉट्स। सो एक की मेजरमेंट 44 सेंटीमीटर है और जो हमारा स्फेरिकल शॉट है वो रेडियस है उसका 2 सेंटीमीटर, राइट। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स एंड इट इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब में से ही तो स्फेरिकल शॉट्स निकलने हैं तो इक्वेट हो जाएगा। रिकास्ट जब भी हम करते हैं तो हमारा वॉल्यूम इक्वल रहता है। सो इट इज़ n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। n हमें नहीं पता क्या है, 4/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7, r आपके पास 2 है, 2 क्यूब। a की वैल्यू कितनी है आपकी 44, साइड की इट इज़ 44 क्यूब। और अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। तो 44 को आप 3 बार लिखोगे, देन यू विल राइट 21 क्योंकि 7 इंटू 3 21 होगा, ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 2 क्यूब नीचे आ जाएगा। सो यू कैन कैंसिल 22 विथ 44, दिस विल बी 2। 4 को 44 से 11 आ गया। अब आपके पास 2 का क्यूब है और ऊपर 2 है, तो 2 को हम एक 2 से कैंसिल कर देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 को आप 44 से कैंसिल कर दो, 11 11 इंटू 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 2541। इसका मतलब यू कैन हैव नंबर ऑफ लेड शॉट्स एज 2541, मतलब इतनी निकाल सकते हैं हम एक क्यूब में से जिसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए, 44। सो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 13. Let's start with question number 13. So it says a wall 24 meter long, 0.4 meter thick and 6 meter high. तो ये तो हमें डायमेंशंस दी हुई हैं एक वॉल की और इस कंस्ट्रक्टेड विद द ब्रिक्स ईच ऑफ डायमेंशन। उसको किससे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ब्रिक्स से, और उसकी डायमेंशन दी हुई है, ब्रिक्स हमारी क्यूबॉइडल होती है। नाउ इट सेज इफ़ द मोटार ऑक्यूपाइज 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल, मतलब एक मोटार है जिसने वहाँ पे 1/10 स्पेस ले लिया है, एक वॉल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉल में 1/10 स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। तो अब उस वॉल में कितनी स्पेस रह गई जहाँ पे ब्रिक्स लग सकती हैं, 9/10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, कि कितनी वॉल्यूम है ब्रिक्स के लिए एक वॉल में।
So it will be 9/10. 9/10 into part of the wall. वॉल्यूम ऑफ वॉल कितनी है? वॉल्यूम ऑफ वॉल आपके सामने है, इट इज़ 24, 0.4 एंड 6. लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है. 24 इंटू 0.4 इंटू 6. पॉइंट हटा सकते हो आप. पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया. आप इसको रिड्यूस करोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 57.6. 9/10 इंटू 57.6. So your answer is 51.84 meter cube. This is the volume of bricks in the wall. मतलब कितनी वॉल्यूम ब्रिक्स ने ली हुई है एक वॉल में मोर्टार को हटा के. तो अब यहाँ पे हमसे पूछे कि कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज़ होंगी इस कंस्ट्रक्शन में. तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इन द वॉल. अभी हमने निकाला है वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक कितनी है हमारी एक वॉल में, राइट. तो अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, आप इसमें पुट कर सकते हो. नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम n ले लेंगे. वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना हो जाएगा? 25/100, क्योंकि ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं वो सेंटीमीटर में है. सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, क्योंकि ये देखो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक किस में है? मीटर क्यूब में. सो देयरफॉर वी हैव टू कन्वर्ट द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल इनटू मीटर. सो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इन द वॉल कितना है? 51.84. इसको आप प्लेस कर सकते हो. नाउ यू हैव टू चेंज द वैल्यूज़, मतलब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है एंड इट विल गिव यू 51.84 और लेफ्ट हैंड साइड से आपका जाएगा 0.004. सो फाइनल विल बी 12,960. सो इतनी नंबर ऑफ वो ब्रिक्स आपको चाहिए इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में इस गिवन कंडीशन में. सो दिस इज़ द आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. Let's now start with question number 14. It says find the number of metallic circular disc with 1.5 centimeter base diameter and of height 0.2 centimeter to be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter. तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ मेटालिक डिस्क. अब वो डिपेंड किस पे करता है? एक तो डिपेंड करेगा हमारा वॉल्यूम पे, किसकी? राइट सर्कुलर सिलेंडर की, एंड वन ऑन वॉल्यूम ऑफ वन मेटालिक सर्कुलर डिस्क. तो यहाँ पे दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो सर्कुलर सिलेंडर, अदर इज मेटालिक सर्कुलर डिस्क. सो दिस इज़ सेम एज द प्रीवियस वन, जैसे हम पहले सारे करते आ रहे हैं बिल्कुल सेम है. तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का एरिया क्या होता है? इट इज़ πr² h. तो हम इसको r1² h1 ले लेते हैं और नेक्स्ट वाले को πr2² h2 ले लेते हैं. पाई से पाई कैंसिल कर दो. r1². राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस कितना है? राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा हमारा? 4.5/2. 4.5/2 कितना हो गया आपका? 2.25 स्क्वायर. एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 10. और बॉटम पे क्या आ जाएगा आपका? रेडियस कितना है? 1.5 का आधा, इट विल बी 0.75 स्क्वायर. एंड हाइट ऑफ वन मेटालिक सर्कुलर डिस्क इज 0.2 सेंटीमीटर. और सारी ही चीज़ें हमारी सेंटीमीटर में है, सो देयर इज़ नो नीड to change any value. So now we will simplify this. So we have 2.25 2 times and we have 10. So this is 2.25 into 2.25. At bottom we have 0.75 2 times. Then we have 0.2. तो सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं हम, तो सेम होना चाहिए, तो हमने रिमूव कर दिया. 75 को आप 225 से रिड्यूस कर सकते हो. 75 टाइम्स 3 225 होता है. सो दिस इज़ 3. 70 टाइम्स 3 इज़ 225. तो आपके पास नीचे बचा है 0.2. पॉइंट हटाओगे 10 ऊपर आ जाएगा. 2 से 10 को कैंसिल कर दो, 5 आ जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विथ
3 into 3 which is 9, 9 into 5 is 45, 45 into 10 is 450. मतलब आपके पास कितनी मेटालिक डिस्क हो सकती है? It could be 450 if the measurements are given to us, right? So this is how you need to solve the questions, and thank you for watching, and please like, share and subscribe to our channel. Have a great day.